हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इमीडिएट लॉसेस और शॉर्ट टर्म लॉसेस। सो शॉर्ट टर्म लॉसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स. वन इज द इलास्टिक shortening of concrete, second one is the anchorage slip, and third one is the friction losses. So let's begin with the elastic shortening of concrete, and as we have discussed that it occurs in both system of pre-stressing, that is in pre-tensioned concrete, and in case of post-tension concrete also. So in pre-tensioned concrete, when the tendons are cut and the pre-stress is transferred to the concrete immediately undergoes shortening. अभी concrete पे अचानक से compression आया due to tendons ना, tendons का pre-stress ट्रांसफर हो रहा है concrete पे कैसे? compression के नेचर का. अब concrete कैसे react करेगी? by undergoing shortening, and the member shortens, and with this the pre-stressing steel also shortens in it because pre-stressing steel भी embedded है, ठीक है, साथ ही साथ concrete के साथ embedded है. So there is loss of pre-stress in the tendons also because of shortening, ठीक है. Whereas in case of post-tensioning, as we have discussed, if all the cables are tensioned simultaneously, if there are mechanisms such available, then there is no loss, since the applied stress is recorded after the elastic shortening has completely occurred. And because in that system elastic shortening do not occur because applied stresses is only recorded just after elastic shortening, so that is already included in the recorded data, so there is no loss. Now if the cables are tensioned subsequently one after another in stages, then there is loss in a tendon pre-stress during subsequent stretching of other tendons. Okay, so how this elastic shortening is quantified, कैसे कैलकुलेट करते हैं? So loss of pre-stress mainly depends on two factors. ध्यान से देखिएगा, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. पहला है मॉड्यूलर रेशियो. मॉड्यूलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी, ओके, ऑफ टू मटेरियल्स. एंड मॉड्यूलर रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, जो कि आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पढ़े होंगे. एंड एवरेज स्ट्रेस किस में? कंक्रीट में. किस जगह पे? बॉटम पे, टॉप पे? नहीं, एट द लेवल ऑफ स्टील. इसे कहते हैं CGS, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्टील. ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय CGS. CGS पे स्ट्रेस कितनी है कंक्रीट की, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉड्यूलर रेशियो से, हमें इलास्टिक शॉर्टनिंग मिल जाता है. ये कैसे होता है आइए देखते हैं. सो लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग इज क्वांटिफाइड. कैसे क्वांटिफाई करते हैं? बाई ड्रॉप इन प्री स्ट्रेस. प्री स्ट्रेस में कितना ड्रॉप हुआ, डेल्टा FP टेंडन में, इनर टेंडन, ड्यू टू किसके कारण ये ड्रॉप इन प्री स्ट्रेस हो रहा है टेंडन्स में? ड्यू टू चेंज इन स्ट्रेन. स्ट्रेन में अब चेंज आ रहा है इन टेंडन भी अब स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है, टेंडन में स्ट्रेन आ रहा है. और अगर स्ट्रेन में चेंज इतना है टेंडन के, डेल्टा एप्सिलॉन P, तो हम देखेंगे कि देयर विल बी अ ड्रॉप इन प्री स्ट्रेस ऑल्सो. सो वी हैव टू अप्लाई हियर स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी to get the value of strain in the tendon. Now as per the strain compatibility, the change in strain in tendon is equal to the strain in the concrete at that level, at the level of tendon due to pre-stressing force. जितना चेंज स्ट्रेन में होगा कंक्रीट में, उतना ही चेंज ऑफ स्ट्रेन होगा टेंडन्स में. यही होता है स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी. So this assumption is due to strain compatibility, and strain in concrete कितनी होगी at the level of tendon, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? This is calculated from the stress in the concrete. Stress in the concrete at that level due to pre-stressing forces. Now there is a linear elastic relationship. This we assume, that's why we are calling it elastic shortening. इलास्टिक कहने का मतलब है लीनियर इलास्टिक रिलेशनशिप इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्ट्रेन फ्रॉम द स्ट्रेस, एंड लीनियर इलास्टिक रिलेशनशिप इज यूज्ड हियर. एंड हियर वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला. चेंज इन स्ट्रेस, drop in pre-stress in tendons will be equal to EP
ईपी क्या है? ईपी है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील बार्स मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन स्ट्रेन इन टेंडन्स एप्सिलॉन पी। अभी हमें एप्सिलॉन पी की वैल्यू हमने देखा कि स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी से जितना स्ट्रेन आता है कंक्रीट में उतना ही चेंज ऑफ स्ट्रेन होता है टेंडन्स में भी। तो हम सीधे रिप्लेस कर दें इसे ईपी इंटू एप्सिलॉन सी। अभी एप्सिलॉन सी क्या होगी? एप्सिलॉन सी स्ट्रेन इन कंक्रीट होगी स्ट्रेस इन कंक्रीट। स्ट्रेस इन कंक्रीट अगर एफ सी है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन सी इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो इसे रिप्लेस कर देते हैं ईपी इंटू स्ट्रेस इन स्टील बार स्ट्रेस इन द कंक्रीट डिवाइडेड बाई इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। नाउ वी कैन राइट इट एज ईपी बाई ईसी इंटू एफ सी। ओके, नाउ ईपी बाई ईसी ये जो रेशियो देख रहे हैं, रेशियो ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील टू दैट ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलर रेशियो। समझ में आया? सो डेल्टा एफ पी कैन बी रिटन हियर एज मॉड्यूलर रेशियो मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस इन दी कंक्रीट वेयर एट द लेवल ऑफ CGS। ठीक है, एट द लेवल ऑफ CGS मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्टील बार्स, प्री स्ट्रेसिंग स्टील बार्स। एंड दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोर्स कैन नॉट बी यूज्ड when tendons are stretched sequentially in a post tension members। So हम ये बात कर रहे हैं प्री टेंशनिंग का ही। ठीक है, now let us come to the second type of immediate loss that is called anchorage slip and this is very easy to understand। anchorage slip किस में होगा? सिर्फ post tensioning systems में, and because it happens when the tendon force is transferred from the jack। अभी jack देखिए, जब भी हम जैसे हम पोस्ट टेंशनिंग कर रहे होते हैं ना, तो पोस्ट टेंशनिंग में दो एंड होते हैं। एक तरफ तो सिंपली डेड एंड होता है, एक तरफ जैक एंड होता है। ठीक है, जहाँ से आप प्री स्ट्रेस पोस्ट टेंशनिंग कर रहे होते हैं, पोस्ट टेंशनिंग करके आप प्री स्ट्रेस अप्लाई कर रहे होते हैं। तो दो एंड होते हैं, और एक डेड एंड और एक जैक एंड, और दोनों तरफ एंकोरेज तो होता है। एंकोरेज मतलब जस्ट टू होल्ड देम। ओके, एंड जैक से आप पोस्ट टेंशन अप्लाई कर रहे होते हैं। सो व्हेन द टेंडन फोर्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जैक टू द एंकरिंग एंड्स द फ्रिक्शन बेजेस। अब फ्रिक्शन बेजेस दिखाया था मैंने, 3 ट्रायंगुलर फ्रिक्शन बेजेस होते हैं जिनके द्वारा हम होल्ड करते हैं, एंकर करते हैं केबल्स को और टेंडन्स को। सो दीज फ्रिक्शन बेजेस स्लिप ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस। देखिए, स्लिप तो होना ही है, सर्टेनली कुछ ना कुछ तो होता ही है स्लिप जब आप रियल लाइफ में करेंगे तो। सो एंकोरेज ब्लॉक ऑल्सो मूव्स बिफोर इट सेटल्स ऑन द कॉन्क्रीट। अब इसे जब एंकोरेज ब्लॉक है, डिवाइसेस हैं, ये भी थोड़ा बहुत मूव करता है जब तक ये फुल्ली सेटल ना हो जाए कॉन्क्रीट पे। सो देयर इज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द टेंडन। अब ये जो स्लिप होगा या एंकोरेज का मूवमेंट होगा, इसके कारण थोड़ा सा रिडक्शन होता है लेंथ ऑफ द टेंडन में। ठीक है, पोस्ट टेंशनिंग की ही बात कर रहा हूँ, प्री टेंशनिंग में तो चेंज होगा ही नहीं लेंथ में। ठीक है, क्योंकि वो तो फुल्ली इम्बेडेड है। और चेंज इन लेंथ होता है, दैट इज ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। वी आर नाउ डिस्कसिंग एंकोरेज स्लिप। ओके, सो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्री स्ट्रेस इज रिलीज्ड ड्यू टू दिस स्लिप ऑफ वायर थ्रू द एंकोरेज। सो अमाउंट ऑफ दैट स्लिप विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वेज, किस तरीके किस कंपनी की वेज हमने यूज की है, एंड स्ट्रेस इन द वायर। सो दो चीज़ों पे निर्भर करती है एंकोरेज स्लिप, which type of wedge or anchorage device we have used and the stress in the wire, stress in the tendon। अगर ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो ज़्यादा एंकोरेज स्लिप होने के चांसेस हैं। एंड ये वेज की टाइप से हमें कैसे पता चलेगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लिप कैन बी नोन फ्रॉम द टेस्ट, आप टेस्ट करो, और फ्रॉम द पेटेंट्स ऑफ द एंकोरेज सिस्टम। आपको पेटेंट्स से मिल जाएंगे, आपको डेटा उसकी मैनुअल पे मिल जाएगी, या आप कंपनी से ले सकते हैं इसमें कितना स्लिप होता है एंकोरेज स्लिप। ठीक है, सो दिस लॉस ऑफ स्ट्रेस इज कॉज्ड हियर बाय अ डेफिनेट टोटल अमाउंट ऑफ शॉर्टनिंग। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा जो लेंथ में चेंज होता है उसके कारण एंकोरेज स्लिप लॉस होता है। और परसेंटेज लॉस इज हायर अगर छोटा मेंबर हो तो, ड्यू टू सेटिंग ऑफ एंकोरेज ब्लॉक एज द टेंडन शॉर्टन्स देयर डेवलप्स अ रिवर्स फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रिवर्स हो जाता है। सो ड्यू टू रिवर्स फ्रिक्शन डेवलपमेंट के कारण अभी एक तरफ से टेंडन शॉर्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन भी अपोज कर रहा है, तो इस तरीके का रिवर्स फ्रिक्शन के कारण अभी पूरे लेंथ में एंकोरेज स्लिप कभी कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रिक्शन रिवर्स हो रहा है नेचर में। एंड दिस इफेक्ट ऑफ एंकोरेज स्लिप इज प्रेजेंट ओनली अप टू सर्टेन लेंथ।
and that is called setting length, L set, and this happens only because of development of reverse friction. अभी एंकोरेज स्लिप को कैसे कैलकुलेट करें? ओके, उसे कैलकुलेट करने का टेस्ट एक तरीका है, दूसरा है पेटेंट और कंपनीज मैन्युफैक्चरर आपको खुद ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ अगर आपको पता चल गया, सो दिस एंकोरेज लॉस कैन बी अकाउंटेड, उसको आप कंपेंसेट भी कर सकते हैं एट द साइट बाई ओवर एक्सटेंडिंग, आपने थोड़ा ज़्यादा ही खींच दिया टेंडन को, ठीक है, ड्यूरिंग प्री स्ट्रेसिंग ऑपरेशन बाय द अमाउंट ऑफ ड्रॉ इन बिफोर एंकरिंग, आपने कुछ स्पेस पहले ही उसके लिए छोड़ रखा है, ठीक है, ताकि उतना लॉस आपका अकाउंट हो जाए, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट हाउ वी कैलकुलेट द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकोरेज स्लिप, एंड इट इज़ कैलकुलेटेड वेरी सिंपल। दिस इज द डेल्टा एफ पी, डेल्टा एफ पी को आप लिख सकते हैं पी बाई ए, ठीक है। यहाँ पी क्या है? पी है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इन द केबल, यहाँ डेल्टा पी लिखूँ तो चेंज इन प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इन द केबल, डेल्टा पी होना चाहिए, यहाँ चेंज लिख लीजिए, ठीक है। नाउ चेंज, और ए क्या है? ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द केबल, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। ड्रॉप ऑफ प्री स्ट्रेस इन केबल आपका कैलकुलेट हो गया, डेल्टा पी वाई है, डेल्टा पी वाई किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा इलास्टिक मॉडुलस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील, ई एस मल्टीप्लाइड बाई, अब आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करना है ड्यू टू स्लिप, स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा बाई एल। अभी डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द स्लिप ऑफ एंकोरेज, ठीक है, ये स्लिप ऑफ एंकोरेज है डेल्टा, ठीक है, और एल है, एल इज द लेंथ ऑफ द केबल, टोटल लेंथ ऑफ द केबल। सो डेल्टा बाई एल विल बी द स्ट्रेन ड्यू टू एंकोरेज स्लिप, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील से, आपको मिल जाएगी ड्रॉप ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकोरेज स्लिप, ओके। सो नाउ लेट अस कम टू द थर्ड टाइप ऑफ इमीडिएट लॉस, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल लॉस। सो अगेन फ्रिक्शनल लॉस, जैसा मैंने कहा, it also happens only in post tension members when the tendons are housed in ducts or seats. So what happens? Friction is generated because most of the time there are few tendons in which we provide some curvatures, okay, so friction develops there, friction is generated between the tendon and the ducts and vertical component of the pre-stressing force also. So there are some vertical components of pre-stressing force, like if this is the pre-stressing, this is the curvature of ducts, so pre-stressing force is being applied here in this direction and in this direction. So if we take a vertical component, there will be a vertical component of pre-stress like this, okay, inside the PSC beam, okay, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जनरेट, ऑल्दो वो बहुत ही कम होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स तो होगा ही। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट ना एक नॉर्मल फोर्स को जनरेट करेगा, ठीक है। वो नॉर्मल फोर्स क्या होगा? अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा, एक सर्टेनली नॉर्मल फोर्स के कारण फ्रिक्शंस भी जनरेट होंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शन फोर्स क्या होते हैं? म्यूएस टाइम्स नॉर्मल फोर्सेस। म्यूएस क्या है? Coefficient of static friction, okay, so that's why vertical component of pre-stressing force also contributes to this frictional losses. Now sometimes profile of the cable is linear, so in that case the loss will be only due to straightening or stretching of the cable, and that is called wobble effect. And if the profile is curved, then there will be loss in stress due to friction between the tendon and the duct और बिटवीन द टेंडन दमसेल्व्स, क्योंकि कई सारे टेंडन्स भी होंगे, तो उन टेंडन्स के बीच में खुद ही कई सारे फ्रिक्शनल फोर्सेस जनरेट होंगे, ठीक है। देयर आर समटाइम्स ग्रुप ऑफ टेंडन्स एंड ग्रुप ऑफ टेंडन्स आर केबल्स, और देयर कैन बी मल्टीपल केबल्स ऑल्सो इन टेंडन्स, इन सिंगल टेंडन, ओके। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस हियर जनरेटिंग, वन बिटवीन द टेंडन एंड द डक्ट and one between tendon and tendon only, okay. So let's see how this frictional forces cause a loss of pre-stress along the length of this beam. Now this is a post tension member, one end is the jack end, okay, jack end, other end is the dead end, okay, and you can see from the jack end to the dead end how this pre-stress
force is varying, it is varying like this. Now this is not exactly linear, this is like a exponential curve like this. Okay, so this is varying, this is going down and down up to the dead end. Now at the jack end, if we have applied this much initial pre-stress, okay, initial pre-stress is equal to P naught at jack end. So if you see, there is continuous reduction in pre-stress along the length of the beam because of this frictional forces that is developing between tendon and the duct and tendon themselves. So at the jack end, it is significantly less. Okay, now this is the variation of pre-stressing force after stretching. Okay, so from this variation, if we are asked to calculate the pre-stress at a distance x from the jack end, okay, so this value is given by px. Okay, so px is given by this formula, and the magnitude of pre-stressing force px at a distance x from the tensioning end follows an exponential function of the type this. Px is equal to p naught into e to the power माइनस म्यू ए प्लस के एक्स. ठीक है, अभी पी नॉट क्या है? पी नॉट इज वॉट? पी नॉट इज प्री स्ट्रेसिंग फोर्स that we have applied at the jacking end. Okay, this is the initial pre-stress that we have applied at the jacking end. Mu is what? Mu is the coefficient of friction between cable and duct. ठीक है, केबल और डक्ट के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो है म्यू. और म्यू की वैल्यू कहाँ से मिलती है? म्यू की वैल्यू अगर टेस्ट डेटा नहीं दिया हुआ है तो IS 1343 provides guidelines for the value of mu, and this is given for the type of interface. For a steel moving on a smooth concrete, mu value is 0.55. For a steel moving on a steel fixed to duct, it is 0.30. For a steel moving on lead, it is 0.25. सो किस तरीके का स्टील किस तरीके के डक्ट में रखा हुआ है या डक्ट के अंदर कौन सा मटेरियल भरा हुआ है उस पर डिपेंड करता है ये म्यू. ठीक है, सो इट इज़ बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स. ओके, बट अल्फा हेयर इफ यू सी, अल्फा इज द क्यूमुलेटिव एंगल इन रेडियन. यहाँ पे ये यूनिट ध्यान से देखिए, इन रेडियन है, डिग्री में मत ले लीजिएगा, ज़्यादातर कैलकुलेशन में रेडियन में होती है एंगल. ठीक है, in radian through which the tangent to the cable profile has turned between any two points under consideration. अगर हमारा केबल इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का कर्वेचर है, और अगर हमने टू पॉइंट्स, अगर हमने ये हमारा जैकिंग एंड है जहाँ पे हमें पी नॉट हमें पता है, दूसरा पॉइंट हमने मान लीजिए टॉप पे लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया. अब टॉप पे जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी टॉप पे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो, और यहाँ पे क्या होगा साइड में. अब दोनों पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी? क्यूमुलेटिव एंगल आपको रेडियन में बताना होगा. तो टेंजेंट शुरू में कैसे था? टेंजेंट इस तरीके का था. अब ये टेंजेंट कितना टर्न हुआ ये आपको देखना होगा. शुरू में ये θ1 था, अभी ये θ2 है, तो θ1 माइनस θ2. अभी जब साइड में आपको कैलकुलेट करना है तो अब आपको देखना होगा ये वाला कितना हो रहा है. अभी ये θ3 है, θ1 θ2 एंड θ3. तो इस साइड में क्या हो जाएगा? साइड में अल्फा क्या हो जाएगा? θ1 प्लस θ3, और इसे रेडियन में रखना है. ठीक है, तो आपको अल्फा मिलेगी. अल्फा इज क्यूमुलेटिव एंगल इन रेडियन थ्रू विच द टेंजेंट ऑफ द केबल प्रोफाइल हैज टर्न्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन. ठीक है, इसीलिए केबल और डक्ट के बीच में जो भी एंगल चेंज होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं म्यू से. म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू मटेरियल्स. नाउ व्हाट इज के? के इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन व्हाट? बिटवीन टेंडन्स themselves. ओके, टेंडन्स themselves. टेंडन्स एंड टेंडन्स टुगेदर also offers some friction, and the coefficient of friction is represented by this letter K. And in absence of test data, the value of K is also given, and it varies from 0.0015 to 0.0050 per meter length of the tendon depending on the type of tendon. मैंने बोला K की वैल्यू डिपेंड करती है टेंडन पे ही. ठीक है, K is the coefficient of friction between tendons and tendons themselves.
Okay, and the value of K is something per meter length of what? Tendons. So X is the length of the tendons that we have to multiply with this friction coefficient K and use it in the formula of Px, which is equal to P naught into e to the power minus mu A plus Kx. So after doing this, we can easily calculate frictional losses. So we will be doing several numericals on the immediate short-term losses also in the upcoming videos. So till that, stay tuned and stay safe. Thank you.